کینن ہال نامی عمارت کے ایک عظیم الشان ہال میں پہنچ کر طاہر رک گیا۔ ہال میں ایک لمبی میز پڑی ہوئی تھی جس کے گرد بے شمار کرسیاں موجود تھیں۔ درمیان میں ایک چوکور ٹرانسمیشن مشین موجود تھی۔ حیرتناک بات یہ تھی کہ طاہر نے عمارت کا جتنا سفر کیا تھا اس میں کسی سے ٹکراؤ نہیں ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے دروازے کے سنتریوں کے علاوہ یہاں اور کوئی موجود نہیں۔ میں اس خالی ہال کو بغور دیکھنے لگا۔ اسی وقت طاہر بول پڑا، یہ سب کچھ آپ کے لیے دلچسپ ہوگا علی؟ میں نے کہا، حیرت انگیز کہو، صرف دلچسپ کافی نہیں ہے۔ کیا وہ شخص جو تم سے تعاون کر رہا ہے یہاں نہیں رہتا؟ طاہر بولا، یہیں رہتا ہے اور اس وقت اپنی خوابگاہ میں گہری نیند سو رہا ہوگا۔ اس کے اہل خاندان بھی یہیں اس کے ساتھ موجود ہیں۔ اگر کوئی اس عمارت کی تلاشی لے تو خود شرمندہ ہو جائے گا، کیونکہ اس پوری عمارت میں ایک تاجر گھرانے کے علاوہ اسے اور کوئی نہیں ملے گا۔ میں نے کہا، ہاں تم نے بتایا تھا کہ یہاں تہہ خانے بھی موجود ہیں۔ طاہر نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی، پھر بولا، گھوڑوں کے تاجر نے کمال کی جگہ بنائی ہے۔ تہہ خانے کا مین راستہ صرف ایک بار اوپر سے کھولا جاتا ہے، اس کے بعد اس کا سارا کنٹرول نیچے ہے، وہ نیچے ہی سے آپریٹ ہوتا ہے۔ میں نے کہا، بہت خوب، اوپر سے آنے والے کسی شخص کا رابطہ نیچے سے کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ طاہر نے ٹرانسمیٹر کی طرف اشارہ کر کے جواب دیا، اس کے لیے یہ موجود ہے۔ میں نے کہا، لیکن تلاشی لینے والوں کے لیے کیا یہ مشین مشتبہ نہیں ہوگی؟ طاہر نے کہا، ضرور ہوگی، آپ ذرا اسے چھو کر دیکھیں۔ اس کے انداز میں ایک بچگانہ سی خوشی تھی۔ میں نے اس کی خواہش کے مطابق اس مشین کے کچھ بٹن دبائے اور ایک دلکش موسیقی نشر ہونے لگی۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا۔ طاہر مسکرا رہا تھا، پھر اس نے کہا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا، اور اس پر شبہ کرنے والے مسکرانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکیں گے۔ پھر اس نے بٹن نمبر 7، پھر 8، پھر 6 دبا دیا۔ مشین پر ایک بار پھر موسیقی ابھری اور پھر ایک سرخ روشنی نمودار ہوئی۔ اس کے بعد کھڑکھڑاہٹ سنائی دی، پھر ایک بھاری آواز ابھری، ہاں کہو۔ وہ بولا، طاہر، کوڈ نمبر 786۔ جواب ملا، آ جاؤ، اور طاہر ہال سے باہر جانے والے راستے پر چل پڑا۔ میں اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ میں نے کہا، ایک بات بتاؤ طاہر، اگر کوئی ایمرجنسی ہو اور کوئی جلد از جلد تہہ خانوں میں پہنچنا چاہتا ہو تو کیا یہ طریقہ طوالت کے سبب نامناسب نہیں ہوگا اور اس سے نقصان نہیں پہنچ سکتا؟ طاہر نے کہا، ایمرجنسی کے لیے ایک اور راستہ موجود ہے۔ میں نے کہا، تم نے وہ راستہ کیوں نہیں استعمال کیا؟ وہ بولا، عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک کمرے میں پہنچ کر طاہر نے دیوار پر لگے چند بٹن دبائے اور دیوار کا ایک حصہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ نیچے جانے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں جن کا اختتام ایک ہال پر ہوتا تھا۔ ہال میں اسلحے کے انبار لگے ہوئے تھے، تمام جدید ترین اسلحہ موجود تھا۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ طاہر مجھے لیے ہوئے ہال سے ایک راہداری میں پہنچ گیا اور پھر ایک دروازے پر رک کر اس نے دستک دی۔ اندر سے جواب ملا، آ جاؤ، اور طاہر مجھے اشارہ کر کے اندر داخل ہو گیا۔ درمیانے سائز کا کمرہ تھا جس کے درمیان ایک لمبی میز پڑی ہوئی تھی اور اس میز کے پیچھے خوبصورت سنہرے بالوں والی ایک لڑکی کچھ کاغذات پر جھکی ہوئی تھی۔ ہمارے قدموں کی آہٹ پر بھی اس نے گردن نہیں اٹھائی۔ طاہر مجھے ساتھ لیے ہوئے اس کے قریب جا پہنچا۔ طاہر نے آہستہ سے کہا، اگر میں تنہا ہوتا تو یقیناً اس وقت تک انتظار کرتا رہتا جب تک آپ مصروف رہتی، لیکن اس وقت ایک ایسی ہستی کے ساتھ یہاں آیا ہوں جس کا نام آپ کے لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہوگا۔ اس کی آواز شاید فاخرہ یعقوبی کے لیے بہت تعجب خیز تھی، کیونکہ اس نے فوراً ہی گردن اٹھائی اور طاہر کو دیکھتے ہی اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے متحجرانہ لہجے میں کہا، طاہر، تم زندہ ہو؟ اور میز کے پیچھے سے نکل آئی۔ میرے خدا، یہ تیرا احسان ہے۔ ابھی تک اس نے میری طرف نگاہ بھی نہیں ڈالی تھی۔ طاہر نے میری طرف گردن کرتے ہوئے کہا، ہاں فاخرہ، آپ کی دعاؤں سے اور آپ کی محبت کے طفیل خدا نے مجھے نئی زندگی سے نوازا ہے۔ وہ بولی، ہمارے علم میں تو تمہارے بارے میں بہت بری خبریں تھیں، ہم سب تو تمہاری طرف سے مایوس ہو چکے تھے۔ طاہر، تمہیں زندہ دیکھ کر مجھے جس قدر مسرت ہوئی ہے میں اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ طاہر نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ نے ہمارے اجنبی دوست کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا؟ فاخرہ یعقوبی تب میری طرف متوجہ ہوئی۔ میں اس کے قد و قامت، اس کے انداز اور اس کی شکل کو دیکھ رہا تھا۔ فلسطین کی ایک حسین بیٹی، نرم و نازک خد و خال رکھنے والی، معصوم نقوش کی مالک، لیکن اپنی ظاہری کیفیت سے بالکل مختلف کہ دشمن اس کا نام لیتے ہوئے کانپتے تھے۔ میں دلچسپ نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے بھی بغور مجھے دیکھا اور پھر اس کی بھی وہی کیفیت ہوئی جو طاہر کی ہوئی تھی۔ وہ حیرت کے عالم میں مجھے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ پھر اس نے طاہر کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی، طاہر، ان کے خط و خال ہمارے علی جار سے کس قدر مشابہ ہیں۔ ہمارے علی جار کے الفاظ جس طرح ادا کیے گئے تھے انہوں نے مجھے وہ ذہنی سکون بخشا کے بیان سے باہر ہیں۔ طاہر کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ بولی، جناب، کیا آپ ہمیں اپنے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ طاہر آپ کو یہاں ساتھ لے کر آئے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ نہایت قابل اعتماد ہستی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کے اندر ایک ایسی خوبی ہے جو ہم سب کو آپ کی طرف کھینچ رہی ہے۔ طاہر نے کہا، فاخرہ، میں آپ کو زیادہ تجسس کا شکار نہیں رکھ سکتا، یہ علی جار خان ہی ہے۔
फाखरा के मुंह से अजीब से अंदाज में निकला, क्या वाकई, क्या ये हकीकत है? मैंने कहा, हाँ फलस्तीन की अजीम बेटी, मैं तुम लोगों का वही खादिम हूँ, मैं ही अली जार खान हूँ। फाखरा याकूबी ने कहा, अली, और बेइख्तियार मेरे करीब आ गई। फिर बोली, ये मेरी देरीना ख्वाहिश थी अली, मेरी देरीना ख्वाहिश थी मेरे भाई, मैं आपसे जितनी अकीदत रखती हूँ आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैंने कहा, ये मेरी खुशबख्ती है फाखरा, इसके सिवा मैं क्या कह सकता हूँ। उसने अपने आप को संभाल कर कहा, लेकिन आप यहाँ? फिर बेइख्तियार मेरा हाथ पकड़ कर बोली, आइए आइए, अब मैं कोई काम नहीं कर सकती। वो इस कदर जज्बाती हुई जा रही थी कि मुझे शर्मिंदगी सी होने लगी और मैं अजीब से अंदाज में उसके साथ आगे बढ़कर एक और कमरे में आ गया जो जरा उम्दा फर्नीचर से आरास्ता था। उसने बड़े एहतराम से मुझे कुर्सी पेश की। ताहिर भी हमारे साथ साथ ही था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, फाखरा, आप तो बहुत बेइख्तियार हो गईं। अली के लिए सबके दिल में ऐसे ही जज्बात हैं, लेकिन आप इनसे इस कदर मुतासिर होंगी ये मैंने नहीं सोचा था। फाखरा ने कहा, ताहिर, अली से मुलाकात मेरी देरीना आरजू है, तुम नहीं जानते। वैसे तुम्हारे बारे में मालूम करना इससे पहले जरूरी है। मुझे माफ करना, तुम बहुत बड़ी उलझन में गिरफ्तार हो गए थे। ताहिर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अब मेरा ख्याल आया है। बोली, नहीं मेरे भाई, मैं तुम्हारे लिए जिस कदर अफसुर्दा और मलूल थी तुम खुद उसका अंदाजा कर सकते हो। मैं समझती हूँ दिली जज्बात को बयान करना बहुत जरूरी नहीं होता। मैंने ये सोच कर सब्र कर लिया था कि हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं। खुदा जिसे जिस वक्त तलब करे हमें उसके दरबार में हाजिरी देना होगी। मकसद की तकमील की खातिर अगर मौत आ जाए तो हम इस पर अफसोस नहीं कर सकते। वो मौत एक दायमी जिंदगी है। ताहिर ने कहा, मैं अपनी इस जिंदगी के लिए अली का एहसानमंद हूँ फाखरा। वो बोली, मैं समझ गई। जाहिर है ये तुम तक पहुंच गए थे तो उसके बाद दुश्मनों के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो तुम्हें खत्म कर देते। मैंने कहा, नहीं फाखरा, अब तुम बहुत जज्बाती हो रही हो। मुझे वो मकाम न दो जिसके मैं काबिल नहीं। तुम्हारी बात से शिर्क का दरवाजा खुल जाता है। वो बोली, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अली, सॉरी, मैं शर्मिंदा हूँ। फिर कहा, अच्छा ये बताइए मैं आपकी क्या खिदमत करूँ, किस तरह आपकी खातिर करूँ? पता नहीं क्या क्या ख्यालात थे दिल में कि आपको देखूंगी तो ये करूंगी, ये कहूंगी, मगर अब तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैंने कहा, मैं तुम्हारे पास मौजूद हूँ, तुमसे बातें कर रहा हूँ, मेरे लिए ये बहुत बड़ा एहसास है। कुछ ऐसे लोग जिन्हें मैंने कभी नहीं देखा और जिन्होंने मुझे कभी नहीं देखा इस तरह मुझे चाहते हैं, मेरे लिए ये चाहत दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा कीमती है। फाखरा ने कहा, अली, हम तो आपके लिए न जाने क्या क्या सोचते रहे हैं, न जाने क्या क्या एहसासात रखते हैं हम आपके लिए। हम जो अपने वतन से दूर ऐसे महाजों पर ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं जहां मौत किसी भी लम्हे हमारे सरों पर पहुंच सकती है। इन लम्हात में भी हमारे दिल कुछ ऐसी शख्सियतों के लिए धड़कते रहते हैं जो हमारी ही मानंद अपना फर्ज पूरा कर रही हैं, लेकिन हमसे कहीं बरतरो आला हैं। मैंने कहा, बहुत बड़ा मकाम दिया है तुमने मुझे फाखरा, मैं उसके लिए शुक्र अदा करने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। ताहिर इत्तेफाक के तौर पर मेरी निगाहों में आ गया था और खुदा का एहसान है कि एक बार मैं इसे तुम्हारे दरमियान लाने में कामयाब हो गया। फाखरा ने कहा, मुझे पूरी कहानी सुनाओ, और मेरी बजाय ताहिर ने उसे पूरी तफसील बता दी। वो तमाम गुफ्तगू बड़ी तवज्जो से सुन रही थी और मैं उसके चेहरे को देखते हुए ये सोच रहा था कि ये वो लड़की है जिसका नाम खौफ और दहशत की अलामत बन गया है। मगर उस वक्त वो मेरे सामने कितने मासूमाना अंदाज में बैठी है। उन लोगों के लिए जो उसकी हैसियत से नावाकिफ हैं, ये सिर्फ एक नाजुक अंदाम हसीन दोशीजा है। न जाने ये कौन से जज्बे हैं जो इंसान की को ही बदल कर रख देते हैं। तंजीम ने मेरे साथ जो सलूक किया था वो मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त था और मैं अमली तौर पर उससे बिल्कुल अलहदा हो गया था। लेकिन सदफुल ऐश, ताहिर और फाखरा जैसे किरदार जब सामने आते थे तो दिल को बड़ी तमानियत का एहसास होता था। वैसे भी अब मेरी सोचों में काफी तब्दीली आ चुकी थी। मेरा अंदाज़े फिक्र जरा मुख्तलिफ हो गया था। तंजीम के कुछ अरकान से मुझे शिकायत पैदा हुई थी, लेकिन तंजीम के मकासद मेरे लिए अब भी काबिल एहतराम थे। चुनाचे अगर गोटे हिल में तंजीम के लिए मैं कोई काम कर रहा था तो ये किसी पर एहसान नहीं था। तमाम कहानी सुनकर फाखरा याकूबी ने अपनी कुर्सी की पुश्त से सर निकाल लिया और चंद लम्हे आंखें बंद किए कुछ सोचती रही। फिर आहिस्ता से बोली, हाँ, ये अली जार खान का ही कमाल हो सकता था। फिर वो मेरी जानिब मुड़ी, बोली, आप यहाँ आ गए हैं अली, मैं ये समझती हूँ कि मेरे शानों पर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। आपकी मौजूदगी में मैं भला ये जुर्रत कैसे कर सकती हूँ कि इस मिशन की इंचार्ज रहूं। हम आपके मावन हैं और आपकी मातहती में काम करना फख्र समझते हैं। बाकी जो कुछ मैं कर रही थी अब उसके लिए भी आप मेरी रहनुमाई करें। अली, मैं इस बात का एतराफ करने में कोई आर नहीं समझती कि मैंने अब तक जो इक़दामात किए हैं वो बेफायदा रहे। मैं उस प्लांट के जाए वकूअ का अंदाजा तक नहीं लगा सकी जिसकी तबाही के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है। इस दौरान मैंने बड़ी कोशिशें की हैं। मैं अपने कई आदमी इस सिलसिले में ज़ाया कर चुकी हूँ और यकीन करें अली,
लम्हा बलम्हा ये खौफ मेरे दिल में बैठता जा रहा है कि शायद मैं अपने मिशन में कामयाब ना हो सकूं। अब मैं यहाँ के सियासी उलटफेर का जायजा ले रही थी और इस बात की मुंतजर थी कि कोई नुमाया शक्ल सामने आ जाए तो मुमकिन है मेरे लिए रास्ते मुतय्यन हो सकें। अली जार खान, अब मैं अपनी ये जिम्मेदारियां आपको सौंपती हूँ। मुमकिन है आपको ये सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आपके आने से हमारे दिलों में उम्मीद की बुझती हुई शम्मा एक बार फिर जल उठी है। मैं आपसे दरखास्त करती हूँ कि मेरी रहनुमाई कीजिए। मैंने कहा, फाखरा, तुम्हारा ये अंदाज मुझे शर्मिंदा कर रहा है। मैं फाखरा याकूबी का नाम उन लोगों की जबान से सुन चुका हूँ जो खुद भी अहम हैसियत के हामिल हैं, लेकिन फलस्तीन की इस बेटी से खौफजदा हैं। बहरहाल मुझसे जो कुछ हो सकता है उसके लिए मैं हाजिर हूँ। तुम उस एटमी प्लांट के जाए वकूअ का पता लगाने में नाकाम रही हो, मैं 1 या 2 दिन में तुम्हें उससे आगाह कर दूंगा। उसके बाद की जिम्मेदारियां तुम्हारी होंगी। मैंने अमरीकियों के 2 अहम मोहरों को खत्म कर दिया है और फिलहाल उन लोगों का राब्ता मकामी हुकूमत से कटा हुआ है। इस सूरत हाल से तुम पूरा फायदा उठा सकती हो। अगर और कोई जिम्मेदारी मेरे लायक हो तो मुझे उसके बारे में जरूर बताओ। वो बोली, नहीं, इसके बाद कोई काबिल जिक्र बात नहीं रह जाती। मैं आपको अपनी तमाम मसरूफियात से आगाह कर दूंगी। उसके बाद कॉफी बनवाई गई। फाखरा याकूबी यहाँ काफी मुतमईन थी। उसके ख्याल के मुताबिक ये ठिकाना मुनासिब और महफूज तरीन था। मैंने उससे ये नहीं पूछा कि घोड़ों के ताजिर को उसने किस तरह इस हद तक आमादा कर लिया कि वो उनके लिए ये सब कुछ करने पर तैयार हो गया। दौरान गुफ्तगू मैंने फाखरा याकूबी से ये भी कहा कि मुझे बास चीजों की जरूरत पेश आएगी, वो उसे खुफिया तौर पर मुहैया करना होंगी। जवाबन उसने आमादगी का इजहार करते हुए कहा कि उसे बेहतरीन तैयारियों के बाद ही यहाँ भेजा गया है और इसके अलावा घोड़ों के ताजिर ने अपने खुसूसी इख्तियारात से काम लेकर उसे जरूरत की मजीद चीजें मुहैया कर दी हैं। मैंने 3 घंटे तक फाखरा याकूबी से इस मौजू पर गुफ्तगू की और उसके बाद एक छोटा सा पॉकेट कैमरा हासिल कर लिया जो फाखरा याकूबी के पास मौजूद था। ये नन्ना सा कैमरा बहुत ही आसानी से ऑपरेट किया जा सकता था और उससे उम्दा तस्वीर उतारी जा सकती थी। कैमरा हासिल करने के बाद मैंने कैमरा ताहिर के हवाले कर दिया और फिर फाखरा से वापसी की इजाजत मांगी। फाखरा याकूबी ने बहुत ही तशक्कुर आमेज जज्बात के साथ मुझे रुखसत किया और थोड़ी देर के बाद हम अपने ठिकाने पर वापस पहुंच गए थे। ताहिर को मैंने अपना बाकी मंसूबा समझा दिया था। उसे इस बात से भी आगाह कर दिया था कि ग्रीन पोल की तरफ से मुझे एक बड़े मिशन का इंचार्ज बना दिया गया है और उस मिशन की गर्ज गायत क्या है। जनरल टेरिस से कैथी ब्राउन के साथ ही मुलाकात हुई। वो प्रोग्राम के मुताबिक मेरा इंतजार कर रहा था और उसके बाद मैंने अपना काम शुरू कर दिया। मैंने माइकल जॉन का मेकअप अपने चेहरे पर किया और ताहिर के चेहरे पर कैरन शीमे का मेकअप कर दिया। जनरल टेरिस मेकअप में मेरी इस महारत को बगौर देख रहा था और मुतहय्यर हो रहा था। इस काम से फारिग होकर दूसरे जरूरी इंतजामात की तरफ तवज्जो दी गई। एटमी प्लांट पर जाने के लिए टेरिस ने हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त किया था और थोड़ी देर के बाद 4 अफराद इंतहाई खुफिया मिशन पर रवाना हो गए। मैं, ताहिर, जनरल टेरिस और चौथा हेलीकॉप्टर का पायलट था जो जनरल टेरिस ही का आदमी था। हेलीकॉप्टर ने शहरी आबादी से हटने के बाद उन भूरी पहाड़ियों की जानिब रुख किया जो खुश्क और बेआबो गया थी और जिनका रंग तेज धूप की वजह से स्याही माइल हो गया था। पहाड़ियों का ये सिलसिला न जाने कहां तक फैला हुआ था। तकरीबन 30 मिनट तक ये सफर जारी रहा और उसके बाद हम एक ऐसे वीरान और बंजर इलाके में पहुंच गए जहां नोकीली चट्टानें सर उभारे खड़ी थी। उन नोकीली चट्टानों से जरा हटकर एक इतना बड़ा मैदान था जहां हेलीकॉप्टर को उतारा जा सकता था। इस मैदान के अलावा दूर दूर तक और कोई ऐसी जगह न थी जहां लैंडिंग की जा सकती। चुनाचे हेलीकॉप्टर को वहीं उतार दिया गया। चट्टानों के दरमियान किसी इंसानी वजूद का कहीं पता नहीं चलता था। जब हम हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे तो जनरल टेरिस ने आहिस्ता से मुझसे कहा, ये न सोचना कि हम इंसानी निगाहों से महफूज हैं। इस वक्त भी इसराइलियों की आंखें हमें घूर रही हैं। मैंने कोई जवाब न दिया और खामोशी से जनरल टेरिस के साथ आगे बढ़ता रहा। हेलीकॉप्टर के पायलट को उसी जगह छोड़ दिया गया था। छोटा सा पॉकेट कैमरा ताहिर के पास मौजूद था और मैंने उस होशियार नौजवान को हिदायत कर दी थी कि एटमी प्लांट में दाखिल होने के बाद फौरी तौर पर फोटोग्राफी शुरू कर दे। यहाँ पहुंचते ही मैंने देखा कि वो मसरूफ अमल हो गया था। उसका हाथ बार बार खुजाने के से अंदाज में सीने की तरफ जाता था। लिबास के अंदर सिर्फ एक छोटा सा सुराख था जिससे कैमरे का लेंस बाहर झांक रहा था। बाकी कैमरा उसके लिबास के अंदर छुपा हुआ था। ताहिर बका उन चट्टानों की फोटोग्राफी कर रहा था। मुमकिन है उसने हेलीकॉप्टर से भी इलाके की तस्वीर ली हो और हेलीकॉप्टर के उस जगह उतरने के बारे में भी रिकॉर्ड महफूज रखा हो। चट्टानों के दरमियान से गुजरते हुए हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां बज़ाहिर कुछ नहीं था, लेकिन जनरल टेरिस ने आगे बढ़कर एक चट्टान को आहिस्ता से एक छोटे से पत्थर से खटखटाया और दफतन हमने एक अजीबो गरीब मंजर देखा। चट्टान के अंदर एक खिड़की सी खुली और एक स्टेन गन की नाल बाहर निकल आई।
अंदर से आवाज उभरी, अपने बारे में तफसीलात बताओ। और जनरल टेरिस ने सिर्फ अपना नाम दोहरा दिया। स्टेन गन की नाल वापस हो गई और उसके फौरन बाद ही हमारे सामने एक गोल खला नमूदार हो गया। ताहिर बका का हाथ उसके सीने पर था। इस खला से गुजरने के बाद हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जो ऊपर की निस्बत निहायत ठंडी और साफ शफाफ थी। छोटी छोटी रोशनियां दीवारों पर नस्ब थीं जो उस इलाके को पूरी तरह से मुनव्वर कर रही थीं। सुरंग तकरीबन 10 गज लंबी थी और उसके बाद उसका इख्तिताम एक चौकोर से कमरे पर होता था, जिसके बारे में ये अंदाजा होता था कि वो इंसानी हाथों ही की तराश का कारनामा है। उस कमरे के अंदर एक मेज पड़ी हुई थी जिसके इर्द गिर्द 4 आदमी बैठे हुए थे। जनरल टेरिस को देखकर वो उठ खड़े हुए और उन्होंने पुरमुसरत अंदाज में जनरल टेरिस से मुसाफा किया। उनमें से एक बोला, अभी हम आपके आने की इत्तला ही सुन रहे थे जनरल, और इत्तेफाक की बात यह है कि मिस्टर माइकल जॉन और कैरन शीमे के बारे में भी अभी थोड़ी देर कबल ही हमें हेडक्वार्टर से कुछ इत्तलात मौसूल हुई थी। जनरल टेरिस ने उस शख्स से पूछा जो जनरल से मुखातिब था, वो क्या मिस्टर कालान? मिस्टर कालान बोला, यही कि उन दोनों हजरात ने अभी तक हेडक्वार्टर से राब्ता कायम नहीं किया। जनरल टेरिस ने कहा, हाँ, ये दोनों अपनी मसरूफियात के सबब ऐसा नहीं कर सके थे। मिस्टर कालान बोला, फरमाइए कैसे जहमत की? जनरल टेरिस ने कहा, वोल्टो मोबाइल ने मेरे सुपुर्द ये जिम्मेदारी की थी कि मौजूदा हालात के तहत एटमी प्लांट के एक एक गोशे का जायजा लिया जाए। कैरन शीमे और माइकल जॉन भी वोल्टो मोबाइल से मुत्तफिक थे। दरअसल आपको मालूम है मिस्टर कालान के आजकल गोटे हिल में क्या सियासत चल रही है। वोल्टो मोबाइल के दुश्मनों को हर वक्त निगाहों में रखना पड़ता है। वोल्टो मोबाइल इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है, शायद ऐसे हालात गोटे हिल में कभी पैदा नहीं हुए थे। चुनाचे हम एक एक चीज का बगौर जायजा ले रहे हैं और हमारी ख्वाहिश है कि हम किसी भी चीज को नजरअंदाज न करें। मिस्टर कालान ने कहा, यह बहुत मुनासिब बात है। हालांकि यहाँ के बारे में हम आपको इत्मीनान दिला चुके थे और फिर ये जिम्मेदारियां हमारी हैं। आप सिर्फ बैरूनी मामलात पर निगाह रखें। बहरहाल हमारे दरमियान ताउन ही हमारी बका के लिए जरूरी है। तशरीफ लाइए, आप अच्छी तरह जायजा ले लें और जहां भी आपको शुबा हो मुझे इशारा कर दें। ये शख्स यकीनन जहां कोई नुमाया हैसियत रखता था। दुबले पतले बदन का आम सा आदमी था। बज़ाहिर उसकी शख्सियत में ऐसी कोई नुमाया खूबी नहीं थी सिवाय आंखों से झलकती मक्कारी के। हम लोग अंदर चल पड़े। ताहिर के बारे में मैं जानता था कि वो उस वक्त कैसे एहसासात से गुजर रहा होगा। उसका हाथ बार बार सीने तक पहुंचता था, लेकिन मैंने एक बार भी उसके अंदाज में यकसानियत नहीं पाई थी। यानी किसी को आसानी से शुबा नहीं हो सकता था कि सीने पर हाथ किस वजह से रखा जा रहा है। हम लोगों ने इसराइली प्लांट का जायजा लेना शुरू कर दिया। ये सब कुछ अंडरग्राउंड ही था। ऊपर बड़ी बड़ी पहाड़ियों का सिलसिला फैला हुआ था। किसी बैरूनी तरीके से उस प्लांट को तबाह करना किसी तौर मुमकिन नहीं था और मुझे ये अंदाजा होता जा रहा था कि फाखरा याकूबी को उसकी तबाही के लिए शदीद तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मैं उसे कोई मौसर मंसूबा पेश करने के बारे में गौर कर रहा था और उसी नुक्ता निगाह से मैं उस प्लांट का जायजा ले रहा था। बड़ी बड़ी भारी मशीनें यहाँ मौजूद थीं। जाहिर है कि उन लोगों को मकामी हुकूमत का मुकम्मल ताउन हासिल था, फिर भला उन्हें क्या दुश्वारी पेश आ सकती थी। तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट तक हम उस प्लांट के मुख्तलिफ शोबों का जायजा लेते रहे। बड़ी जबरदस्त कार्रवाई हो रही थी यहाँ और इसराइली बेपनाह मसरूफ थे। मेरे अंदाजे के मुताबिक यहाँ तकरीबन 70 अफराद काम कर रहे थे और मशीनों का तो कोई शुमार ही नहीं था। यकीनन ये जगह बड़ी अहम थी और उसकी तबाही यकीनी तौर पर इसराइल के लिए नुकसान अजीम साबित हो सकती थी। ताहिर ने तकरीबन तमाम ही हिस्सों की तस्वीर ले ली थी। मुआयने के बाद जनरल टेरिस ने अपने इत्मीनान का इजहार किया। कालान ने उसे लंच की पेशकश की। चूंकि दोपहर का वक्त हो गया था, हम लोगों ने अपने दुश्मनों के दरमियान बैठकर आराम से खाना खाया और फिर चंद अफराद हमें हेलीकॉप्टर तक छोड़ने के लिए आए। फिर हेलीकॉप्टर फजा में बुलंद हो गया। जब वो फजा में सीधा हो गया तो जनरल टेरिस ने एक गहरी सांस लेकर मुझसे कहा, कहो तुम्हारा काम मुनासिब अंदाज में हो गया या नहीं? मैंने जवाब दिया, बिल्कुल मुनासिब और काबिले इत्मीनान। टेरिस बोला, गोया मेरे सुपुर्द जो काम था वो मुकम्मल हो गया। मैंने कहा, हाँ जनरल, लेकिन उसके साथ साथ ही अगर हमें आपकी जरूरत पेश आई तो मुझे यकीन है कि आप हमारा साथ देंगे। वो बोला, ये कहना तो बेकार ही है डियर पार्को। तुम जानते हो कि मैं तुमसे बहुत मुतासिर हूँ और अब मेरे मिशन की तकमील में तुमसे अहम कोई शख्स नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अपने इस प्रोग्राम के साथ साथ ही तुम मेरे मसले को भी जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करो। मैंने कहा, जनरल वो सिर्फ आप ही का मसला नहीं है, मेरा भी मसला बन चुका है। ताहिर इस दौरान बिल्कुल खामोश बैठा रहा था। मैं उसके दिली जज्बात का बखूबी अंदाजा कर सकता था, इसलिए मैंने भी उसे मुखातिब नहीं किया। हम बखैर आफियत अपनी मंजिल पर पहुंच गए। उस वक्त दिन के तकरीबन 2:30 बजे थे। हेलीकॉप्टर वापस चला गया। जनरल टेरिस, मैं, ताहिर और कैथी ब्राउन एक मखसूस कमरे में आ बैठे।
जनरल टेरिस ने मुझे देखते हुए कहा, क्या ख्याल है डियर पार्क को? तुमने एटमी प्लांट का जायजा तो ले लिया है, क्या उसे तबाह करने में अपने तौर पर कामयाबी हासिल कर सकते हो? मैंने जवाब दिया, हाँ, हम इसकी जिम्मेदारी आप पर नहीं डालेंगे जनरल, बल्कि अपने तौर पर ही ये काम अंजाम देंगे। ताहिर ने भी पुरजोर अंदाज में गर्दन हिलाई। बोला, बेशक जनरल, आपने जो साथ दिया है हम उससे ज्यादा आपसे किसी चीज के तालिब नहीं होंगे। जनरल ने कहा, नहीं, इसके बावजूद मैं चाहता हूं कि मेरे लायक जो भी खिदमत हो जरूर बताओ। ताहिर बोला, बहुत बहुत शुक्रिया, अगर ऐसी कोई जरूरत पेश आई तो हम आपको यकीनन ज़हमत देंगे। मैंने ताहिर से पूछा, अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है मेरे नौजवान दोस्त? ताहिर ने झिझकते हुए अपना मुद्दा जाहिर किया। बोला, क्या मुझे यहाँ से वापसी की इजाजत मिल सकेगी? जनरल टेरिस ने कहा, कैसी बातें करते हो, तुम अब बिल्कुल आजाद हो, जहां चाहो जा सकते हो। ताहिर मशकूर निगाहों से हमें देखता हुआ अपनी जगह से उठ गया। उसे रुखसत करने के बाद एक बार फिर हमारे दरमियान गुफ्तगू का आगाज हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।